والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی حضرت علامہ مولانا اشرف رضا صاحب بانی دارالعلوم ہرنے دیوگھر، ان کی محبت، ان کی دعوت اور کمیٹی کے جتنے بچے ہیں سارے بچوں کی محبت، صدر سیکریٹری سبوں کی محبت اور اس علاقے میں رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان آپ کے بیچ حاضر ہوا. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. انتشار کا ماحول بن کرے، چپ چاپ بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں. میرے بعد ایک تقریر اور باقی ہے. شہزادے جمال ملت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا نعمان اختر صاحب فائق الجمال، میرے بعد ان کی بھی تقریر آپ کو سننی ہے. فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا ربانی کی تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن اور جلسے کے موضوع کے مطابق ہو، جیسا جلسہ ویسی تقریر، جبکہ یہ مہینہ سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب ہے، اس کے باوجود بھی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی تقریر میں وہ باتیں رکھوں جس سے لوگوں کی الجھن ختم ہو. سلجھے ہوئے مسئلہ کو بیان کرنا آسان ہے، مگر الجھے ہوئے مسئلہ کو بیان کرنا آسان نہیں. آپ کا یہ مولانا کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ الجھے ہوئے مسئلہ کو سلجھایا جائے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے سرکار کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے. کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ یہ بات بھی میں آپ کے بیچ میں رکھوں گا. دو باتیں ہو گئے. تیسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا ولیوں کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا غوث اعظم کا مرتبہ اور ان کی شان کیا ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے نبی، کیا اللہ کے پیغمبر اور کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہیں یا مر کر پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل گئے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ یہ باتیں بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بابو لوگ ہوش میں بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، اٹھک بیٹھک نہ کریں. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے اور بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار ادب سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو. ماشاءاللہ مجمع بڑا اچھا، لیکن مجمع اگر سننا چاہے گا تبھی آپ کا یہ مولانا آپ کو سنائے گا. ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ جھگڑا ختم، لڑائی ختم، اختلاف ختم. بشرطے کہ ادھر دیکھیے اللہ نے اس کی قسمت میں جنتی ہونا لکھا ہوتا، ادھر دیکھیے، اور اگر جہنمی ہونا لکھ دیا ہے تو ہزاروں مولانا ربانی
मेहरबानी आ जाए कोई फर्क नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे। एक बात ध्यान से सुने, हर आदमी तकरीर, हर आदमी या हर मौलाना या अक्सर शायर घड़ी पहनकर तकरीर करते हैं, लेकिन जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा, और जब आंख बंद हो जाती है, मुंह आसमान की तरफ खुल जाता है, तो मैं समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा। जब तक आपकी ये नौबत रहेगी कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तकरीर चालू रहेगी। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। सिर्फ हदीस और उसका मतलब किस्सा कहानी नहीं। अगर वाकई आप हदीस सुनना चाहते हैं बाबू लोग, तो अदब से बैठिए, होश में बैठिए। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, सैयद अबरार व खियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो रूज़त, जिनकी शान न आते ना कर को सर, शाफे मशर साकी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना। सारा मजमा, हमारी माँ बहन भी अदब से पढ़े, हमारे जवान लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग अदब के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सरवर सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले तो आप हमें ये बताइए कि मेरी आवाज हर आदमी तक साफ साफ पहुंच रही है? पहुंच रही है। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह, मैं आपसे खुश हूं। आजकल माइक में इतना इको डाल दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पढ़ने वाला या बोलने वाला आम बोल रहा है कि इमली बोल रहा। मैं जब जलसे में आता हूं तो कोशिश करता हूं कि मेरी आवाज साफ सुथरी हो। ये बाबू माशाअल्लाह बाबू का ठीक है। इन लोगों का कसूर नहीं है, इनको शायर लोग परेशान करते हैं। ये बेचारे बच्चे लोग क्या करेंगे, है कि नहीं? बहरहाल माशाअल्लाह बहुत ठीक ठाक है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाइए, इधर देखिए। शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। वाह, सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, ध्यान से सुनिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देवघर, जसीडी, बांका और इस अतराफ के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को पेश किया, मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना।
किसी बेईमान के बहकावे में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, अपने मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल, आप गुलामों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, आदमी तो हूं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारे आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे महबूब बनाकर भेजा है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है, हम सुन्नियों का ईमान है कि रसूल बशर है। हाथ उठाकर बोलो रसूल बशर, जोर से बोलो रसूल बशर। इधर देखिए, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। और हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे बशर नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है। जो रसूल को आम लोगों की तरह माने वो भी काफिर है, काफिर। कान खोलकर सुन लो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के मकाम को नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, लेकिन कभी उस्ताद के मर्तबा को नहीं पा सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़कर रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? जो ये कहे कि रसूल हम जैसे बशर थे, उससे बड़ा पागल कुत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर देखो, उस पागल कुत्ते को आगरा के पागल खाने में भेजो, और अगर आगरा सही नहीं हो सका तो रांची में तो ठीक ही हो जाएगा। हर जोर से बोलो, जो पागल आगरा में ठीक नहीं होता, रांची में उसको ठीक होना ही होना है, क्योंकि यहां तो करंट भी लगते हैं और जूते भी पड़ते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो, आपको अपने आका को पहचानना हो, अपने आका की शान और अजमत को समझना हो, तो इधर देखो, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप से मत पूछो, किसी कम पढ़े लिखे लोगों से, किसी कम पढ़े लिखे आदमी से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर अपने आका की शान समझनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान नबी कैसे थे? तो कुरान आपको जवाब देगा खुल्लम खुल्ला। खोल कर देखिए, कुरान जवाब देगा कि नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ये बताइए, मैं आपको 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, लेकिन बाबू लोग, आजकल लोग क्या समझते हैं, ये मौलवी मौलाना का झगड़ा चल रहा। अरे बोलो, लोग क्या समझते हैं, ये मौलवी मौलाना की लड़ाई चल रही है, ये मुर्गा मछली की लड़ाई है, ये पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, ये दाढ़ी टोपी वाले की लड़ाई है। आप धोखे में हो। इधर देखिए, लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी हमको गाली देता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, गौसे आजम को गाली ये दे, बोलो गरीब नवाज को गाली ये दे, चिराग देहलवी को गाली ये दे, निजामुद्दीन औलिया को गाली ये दे, सरकार आला हजरत को ये गाली दे,
इनकी जमात वाले बुरा भला कहे और हम उनका जवाब दे तो कहते हैं कि ये हमको गाली देते हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। कान खोलकर सुन लो, ये सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी वली के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौचा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है, गौसे आजम से मोहब्बत करता है, बुजुर्गों से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे गौस का दामन, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बिल्कुल बैठिए। स्टेज पर भी है बाबू, चाय चुपचाप से पिलाओ, इधर उधर मत करो। और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अगर वाकई आप चाहते हैं कि मेरी तकरीर सही अंदाज में हो तो आप लोग अल्लाह के वास्ते बैठो। ये मौलवी आपको बार बार नहीं मिलेगा। अरे बोलो, ये मौलवी आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आया है तो मुकद्दर से आप सुन लो, ताकि आपको कोई बेईमान बहका न सके। इशारा है। अरे बोलो, अगर इजाजत है तो मैं अब आपको हदीस सुनाओ। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। अगर हदीस सुनना चाहते हो बाबू लोग तो कोई इधर उधर मत करो, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फसाइल सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 515 अन अबी ज़र्र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र्र अतानी मलकान व अना बिबाज़िबतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इला al-ard wa kana al-akharu bayna as-samai wal-ard faqala ahaduhuma li sahibihi ahuwa huwa qala na'am qala fazinhu bi rajul fawazintu bihi fawazantuhu thumma qala zinhu bi ashara fawazintu bihim farajjahtuhum thumma qala zinhu bi miyat fawazintu bihim farajjahtuhum thumma qala zinhu bi alfin fawazintu bihim farajjahtuhum kanni anzuru ilayhim yantasiruna alayya min khiffati al-mizan qala faqala ahaduhuma li sahibihi law wazantahu bi ummatihi larajjaha जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये हदीस मैंने पेश की किस किताब की? ए बाबू, मेरी नजर सबको देख रही है। दिल में बसाइए, दिल में बसाइए। मोबाइल में बसाएंगे तो कोई बच्चा अगर बटन दबा दिया तो उड़ जाएगा, और दिल में बसाएंगे तो वो कभी उड़ेगा नहीं। तो मेरे बाबू लोग दिल में बसाइए, दिल में। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ पेज नंबर 515, गलत साबित करने पर सीधे 5 लाख का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा। उनसे कहिए कि तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सकते हो। आज चौक चौराहा पर इधर देखिए, छोटी छोटी किताब लेकर, छोटी छोटी किताब लेकर गली कूचे में हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू बोल रहा है वो तो जाहिल है, जाहिल। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? बेशक बेशक। अरे बोलो, वो तो जाहिल है, उसको क्या खबर है कि तू बोलो हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। ये अंदाजा उलमा को होगा, मौलाना इसराफिल जैसे लोगों को होगा। हमारे दीगर उलमा तशरीफ फरमा है, आप जैसे लोग इसका अंदाजा कर सकते हैं कि तू हदीस बोल रहा है कि बहुत बड़ा
खबीज बोल रहा है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, सरकार से अर्ज किया, क्या अर्ज किया? ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, आप पर कौन ऐसा वक्त आया कि जिससे आपने अंदाजा लगा लिया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कैसे आपने अंदाजा लगा लिया? गौर से सुनिए बच्चे, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। तो नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहूबा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने, जोर से बोलो। ऊपर वाले फरिश्ते से कहा, जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश है वो देखो अल्लाह के महबूब है, वो नबियों के इमाम है। नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते जमीन पर आ गए और दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद फिर देख रहा हूं, दोनों फरिश्ते अपने हाथों में बहुत बड़ा तराजू लेकर आ गए। क्या लेकर आ रहे? बहुत बड़ा तराजू, तो समझ रहे हैं, बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को आसमान में लटका दिया, तराजू को आसमान में लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 नमाजी पर भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बुजुर्ग लोगों को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को? जोर से बोल दो। 1000
नमाजी को आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, इनके जैसे नमाजी नहीं, बल्कि गौसे आजम जैसे नमाजी, गरीब नवाज जैसे नमाजी, जितने नमाजी थे सब अल्लाह के वली, सब बुजुर्गाने दीन, सबको पकड़ कर लाए, तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाक़या देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे, लवज़नतहु बे उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तोड़ रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। ये बताओ बाबू लोग, मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? अरे बोलो, सबकी समझ में आ रही है? मैं आपसे बहुत खुश हूं। लोग बदनाम करते हैं कि देवघर के लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। देवघर के लोगों को बोलो तकरीर सुनाने वाला चाहिए। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाओ, जल्दी बैठाओ, इधर देखिए, इजाजत है, जल्दी बोलो। ए बाबू लोग, बाबू लोग इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, अगर समझ में बात आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो। क्या कहा? 1 तो छोड़ो। 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, सारी उम्मत को तराजू में रख दो तो रसूल का पल्ला। तो अब फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो ये गली कूचों में चलने वाला बेईमान, अरे बोलो, रसूल के बराबर होगा? जब ये अपने अब्बा के बराबर नहीं है, अरे बोलो, अपने दादा के बराबर नहीं है तो रसूल के बराबर होना। जो ये कहे रसूल हम जैसे बशर थे या हमारे बराबर, तो कसम खुदा उसका सीधा जवाब दीजिए। कान खोलकर सुन लो, मेरे आका के बराबर होना मुहाल है, मुहाल। हाँ, तुम सूअर के बराबर हो, तुम कुत्तों के बराबर हो, तुम गधों के बराबर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना आतंकवादी के खिलाफ बोलो। लेकिन अगर नबी के खिलाफ बोलोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, लाठी बाज से नहीं लड़ेंगे। अरे जोर से बोलो, लाठी बाज से नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो हदीसों कुरान से लड़ेंगे और तुमको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने किस्मत में जन्नती होना लिखा है तो सुधर जाओगे, वरना हजारों मौलाना रब्बानी तुम्हारे लिए बोलो कोई काम के नहीं है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि थक गए। और बोलो, थके तो नहीं, थके तो नहीं बाबू लोग। मैं आपसे खुश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजा रख कर बैठ जाए। मौलाना रब्बानी की तकरीर में रोजा रखना मना है। अभी रमजान का महीना नहीं है, अरे बोलो, रमजान में तो रोजा रखना ही है। इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, बाबू लोग ध्यान से सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू फजाइल सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 513 अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुल खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदलुन फी क़ीनती व सउख़बिरुकुम फी अव्वल अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वफ़ातनी फ़क़द खरज लहा नूर अज़ाअ लहा मिन्हु क़ुसूर शाम। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये 2 हदीस मैंने आपको सुनाई, इस हदीस को भी गलत साबित करे तो मुंह मांगा ही ना। गलती इधर देखिए, इधर उधर बोलना कुत्ते की तरह भूकना आसान है, लेकिन हदीस बोलना पसीना गिराना मौलाना रब्बानी की तरह ये आसान नहीं है। इधर देखिए, अगर मैं जिस रंग में हदीस बोलता हूं, अगर उनका मौलवी बोल ले तो बोलो बराज सब निकल जाएगा। अरे बोलो, हाँ पूरा पेट खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकता। इधर देखिए, मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए, मगर एक बात याद रखिए, सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। अरे बोलो, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। मैंने सुना है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में आप लोग इमाम 12 बना करके वहां पर सजदा करते हैं। अरे बोलो, अब आप बताओ तुम कैसे सुन्नी हो? तुम पर तौबा है, तौबा। तुमको पता नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना हराम, हराम हराम ताजीमन, और अगर खुदा मान करके सजदा किया तो काफिर। अरे जोर से बोलो, काफिर। तो सुन्नियत को बदनाम मत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने का यह मतलब नहीं कि उनको सजदा करो, उनका इमाम 12 बना करके तुम उसके सामने पेशानी टेको। याद रखो, ऐसा करना हराम है, कुफ्र है। हाथ उठाकर बोलो, हराम है, कुफ्र है। सुन्नी बनो, लेकिन सुन्नियत को बदनाम मत करो। गरीब नवाज के मजार पर जाओ, बुजुर्गों के मजार पर जाओ, तो चंद हाथ पीछे हटकर फातिया पढ़ो। कितना? चंद हाथ पीछे हटकर फातिया पढ़ो और अदब से पीछे खिसकते हुए चले आओ। ये है अदब का तरीका। ये नहीं कि नाक रगड़ना, ये नहीं है कि पेशानी रगड़ना, ये सब बेअदबी है। क्या है? जोर से बोलो, बेअदबी है। बुजुर्गों की बारगाह में जाइए तो अदब से हाजिरी दीजिए, इज्जत से हाजिरी दीजिए, इमाम आली मकाम से मोहब्बत कीजिए, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। मना बोलो, मोहब्बत ही करना हमारी शान है, हमारा अकीदा है। लेकिन वो याद रखिए, उनकी बारगाह में जाइए तो सजदे की हालत ना हो। सजदे की हालत पैदा करना हराम हराम हराम। और अगर खुदा के बराबर समझ करके सजदा किया तो वो आदमी काफिर हो गया, उसका निकाह खत्म, उसकी बयात खत्म। उसको कहिए तौबा करे, फिर से कलमा पढ़े, तब जाकर मुसलमान बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बाबू लोग। इधर देखिए, हमारे उलमा, चाहे आप हो, चाहे मैं रहूं या कोई रहे, अगर शरीयत के खिलाफ जाएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे मैं रहूं, चाहे मौलाना इसराफिल हो, चाहे हमारे बोलो जामिया हिरने बाजार जहां पर मदरसा है। देवघर आपको मालूम है, देवघर कौन सी जगह है? अरे बोलो, हिरने में आपका, हिरना में आपका मदरसा है। जंगल को मंगल बना दिया है। उम्र देखिए, ये मुझसे कम से कम 17 बरस 18 बरस छोटे हैं। याद रखिए, जब मैं फारिग हो चुका था तब ये गरीब नवाज में पढ़ने गए। ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे चहीते हैं। जब इन्होंने मदरसा कायम किया, मैंने देखा तो मेरा सीना हौसला बढ़ गया। बंबई में मदरसा खोलना कमाल नहीं है, इधर देखो दिल्ली में मदरसा खोलना कमाल नहीं है, लेकिन यहां मदरसा खोलना सबसे बड़ा कमाल है। तो आपको कांधा से कांधा मिलाकर इनको पहचानिए और इनके मदरसे को पहचानिए, आगे बढ़ाइए।
تاکہ دین کا قلعہ مضبوط ہو. یہ بات چلی ہے تو میں نے کہہ دیا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا اشرف رضا صاحب کو خوب ترقی دے اور مدرسے کو دین دونا رات چوگنی ترقی. مدرسے کا کیا نام ہے؟ مدینۃ العلوم. نام بھی کتنا پیارا ہے، قسم خدا ہے، علم کا مدینہ. اور صرف علم ہی کا مدینہ نہیں ہے، جو بچہ وہاں پڑھے گا سب کو بولو علم کا مدینہ تو ہے ہی، عشق کا بھی مدینہ ہے. ارے زور سے بولو. وہاں پڑھنے والا اللہ رسول سے بولو مضبوط رشتہ بنائے گا. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی دے اور آپ کو آگے بڑھانا ہے مولانا اشرف کو، اور اس مدرسے کو خوب آگے لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. اب میں آپ کو دوسری حدیث کا مطلب بیان کروں، اجازت ہے؟ لیکن مطلب ایسے نہیں بیان کروں گا، دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے. ارے بولو کہتے ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ادھر دیکھیے، اس حدیث کو غلط ثابت کرو 10 لاکھ روپے دوں گا. کتنا؟ ارے بولو کہہ رہا 10 لاکھ روپے قسم خدا. لیکن وہ 1 روپے نہیں پا سکتا کیونکہ غلط نہیں ہے. میں جو حدیث سنا چکا ہوں مطلب سنیے. مطلب ادھر دیکھیے. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک، بے شک میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی نبی تھا، اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین تھا. جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. ابھی پانی الگ مٹی الگ، مٹی گوندھی نہیں گئی، پانی ڈالا نہیں گیا، دونوں جدا جدا. نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. آگے سنیے. نبی فرماتے ہیں میں ان قریب تم کو غیب کی خبر دوں گا، ان قریب میں تم کو غیب کی خبر دوں گا. نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت منظر ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. میری امی نے کیا دیکھا؟ جس وقت میں پیدا ہوا میری امی نے یہ دیکھا، ان کے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور نے مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا جوان سلامت رہے. کیا ایک ہی جوان جذبات؟ ارے بولو ایک ہی جوان نبی کا غلام ہے، اور بھی تو جوان ہے. ادھر دیکھیے. نبی کا نام سننے سے جوش پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے، میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی یہ مشکات شریف پیج نمبر 513. ارے بولو پیج نمبر 513. نبی نے کیا کہا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچوں بیچ تھے. نبی فرماتے ہیں کہ میں ان قریب تم کو غیب کی خبر دوں گا. نبی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. میری ماں نے کیا دیکھا؟ جب میں پیدا ہوا ایک نور نکلا، ان کے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور نے مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. ماشاءاللہ. بیٹھی بیٹھی جلدی بیٹھی. یہ دیکھیے حضرت علامہ مولانا. جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو بابو. اے بیٹا ساؤنڈ بس کے سامنے سے ہٹو، اے ساؤنڈ بس کے سامنے سے ہٹو. یہ حضرت علامہ مولانا نعمان اختر صاحب فائق الجمال، یہ شہزادہ جمال ملت. ادھر دیکھیے. جس عالم کو بلائیے اس کی قدر کیجیے. ارے بولو ادھر دیکھیے. جب عام مہمان کی قدر کرنا سنت رسول ہے. ارے بولو جب عام مہمانوں کی قدر کرنا سنت رسول ہے
तो उलमा की कदर करना तो बदरजाए औला सुन्नत रसूल। अरे बोलो, यकीनी बात है, उलमा नबी के नायब है, आप उनकी कदर करोगे, याद रखोगे, सवाब पाओगे, मर्तबा पाओगे। हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब फायकुल जमाली तशरीफ ला चुके हैं, मेरे बाद उन्हीं का नूरानी खिताब आपको सुन रहा है। थोड़ी देर और बैठिए, मेरी तकरीर में, मेरी तकरीर यानी आपको रात भर बैठना है, इधर देखिए, लेकिन मैं अपनी तकरीर में थोड़ी देर और वक्त चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो बाबू लोग सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, तो दो हदीसें मैंने आपको सुनाई। कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है। अभी आपने हदीस सुनी, नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ, मेरी वालिदा करीमा ने देखा कि मेरे बदन से एक नूर निकला। क्या निकला? नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। खिलाफ बोलना, चोरों के खिलाफ बोलो। तुम कलमा पढ़कर अपने नबी के खिलाफ बोलोगे तो दुनिया क्या कहेगी? तो बोलो, दुनिया क्या कहेगी कि ये दाढ़ी टोपी वाला अपने नबी के खिलाफ बोल रहा है, वो पागल है, पागल। उनसे कहिए होश में आए, तौबा करे, सुन्नी बनकर रहे। अभी मैंने आपको दो हदीस सुनाई। अब अगली गुफ्तगू, इधर देखिए, अगली गुफ्तगू, दूसरे नंबर पर जो मैंने वादा किया है वो गुफ्तगू सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। ये कौन लोग कहते हैं? कुछ लोग। इधर देखिए, उनका मैं जवाब देता हूं। पहले एक बात बताइए, इधर देखिए, पहले एक बात बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? हाथ नीचे करो। ये बताओ, क्या जो लोग मर गए उनको भी जीएसटी देनी है? क्या उनको भी आधार बनवाना है? क्या उनको भी कब्र में वैक्सीन लेनी पड़ेगी? कब्रिस्तान में जाकर ये कहे कोई कि मोदी जी ने बड़ी सख्ती कर दी है। अरे भाई, मिस्टर मोदी जी ने बड़ी सख्ती कर दी, अब तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा, वरना कब्रिस्तान से निकाल दिए जाओ। क्या ऐसा है? अरे बोलो, ऐसा है? इधर देखिए, देश का कानून जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। अच्छा ये बताइए, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये जिंदों पर फर्ज है कि मुर्दों पर? हाथ उठाओ। जब आप समझ गए तो अब समझिए, उन बेईमानों से कहिए जो बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के बाद गए? उनसे पूछिए, जवाब नहीं दे सकते। इधर देखिए, आपको पता नहीं होगा नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए। इधर देखिए, जब मेरे नबी माँ के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा दुनिया से चल बसे। अभी मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जोर से बोलो, मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा। मां के शिकमे मुबारक में थे, उसी वक्त उनके अब्बा हुजूर 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। और मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में। मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में। तो उन पागलों से पूछिए कि नबी के माँ बाप ने जब ऐलाने नबूवत का जमाना ही नहीं पाया तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज कैसे हुआ? अबे पागल की औलाद, नमाज उस वक्त फर्ज है जब वक्त हो। जोर से बोलो, नमाज उस वक्त फर्ज है जब वक्त हो। अगर अभी आप फजर की नमाज पढ़ना चाहोगे, होगी? नहीं होगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए वक्त जरूरी है। ऐसे ही किसी नबी का कलमा पढ़ने के लिए उनका ऐलान या नबूवत का जमाना पाना जरूरी है। अगर नबूवत का जमाना नहीं पाया,
اعلان نہیں سنا تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا۔ اب سنیے کہ نبی کے ماں باپ کیا تھے، اس وقت کیا تھے۔ نبی کے ماں باپ موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ لاؤ کوئی ایسی حدیث جس سے تم ثابت کرو کہ نبی کے ماں باپ نے بت پرستی کی ہو، میں تقریر کرنا بند کر دوں گا اور مجھے زندہ دفن کر دو۔ لیکن تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ کسی حدیث سے ثابت کر سکو کہ نبی کے ماں باپ نے بت پرستی کی ہو، شرک کیا ہو، بلکہ ہر حدیث سے یہی ثابت ہے کہ نبی کے ماں باپ موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ بولو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، اور اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ زور سے بولو، اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیے مزے کی بات، ادھر دیکھیں میرے نبی کے ماں باپ نے نبوت کا زمانہ، ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو، نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اعلان کیا کب؟ جلدی بولو، 40 سال کی عمر میں۔ اور ان کے ماں باپ کب گئے دنیا سے؟ جلدی بولو، نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ ابھی آپ کو سنا بتا دیا، جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے ابا دنیا سے چلے گئے، اور جب میرے نبی 5-6 برس کے ہوئے تو ان کی امی جان والدہ کریمہ ادھر دیکھیے دنیا سے چل بسی۔ میرے نبی کے ماں باپ اس وقت کیا تھے؟ موحد تھے۔ کیا تھے؟ موحد۔ موحد کا مطلب صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہی اس وقت جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب آگے والی بات سنیے، جب نبی نے اعلان نبوت کر لیا تب کیا ہوا؟ جب نبی نے اعلان نبوت کر لیا تب کیا ہوا؟ مزے کی بات سنیے، مزے کی بات۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، سارا مجمع۔ بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، بڑی معتبر کتاب، پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے رو رو کے دعا کیا، یا اللہ میرے ماں باپ نے میرا زمانہ نہیں پایا، میرے اعلان کو نہیں سنا، لیکن تجھ سے محبت کرتے تھے، تجھ کو ایک مانتے تھے، تجھ پر ایمان رکھتے تھے، وہ موحد تھے۔ یا اللہ میری تمنا ہے کہ میرے ماں باپ پہلے موحد تھے، اب میں کلمہ پڑھا کر ان کو مومن بھی بنا دوں۔ تو نبی نے جیسے یہ دعا کیا، نبی کی دعا قبول ہوئی، نبی کے ماں باپ کو اللہ نے زندہ فرمایا، نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، پھر دونوں قبر میں تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتا پتا پھول پھول، پتا پتا پھول پھول، رسول مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، میں بابو سے بہت خوش ہوں۔ نعرہ لگانے سے 3 فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ اور بولو، نعرہ لگانے سے کیا فائدہ؟ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو ثواب ملتا ہے، دوسرا فائدہ تقریر سننے میں ٹیسٹ ملتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ بولنے والے کو ریسٹ ملتا ہے۔ لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹاٹا برلا کی مشین جیسے 24 گھنٹہ کھٹر پٹر، ویسے ہی مولانا ربانی صاحب بھی بس بنا سانس لیے بولتے رہے، مولانا نعمان اختر صاحب بھی بولتے رہے، بیچ بیچ میں کم سے کم نعرہ لگاؤ
ताकि लोगों का हौसला भी बढ़े और जो मच्छर बदन पर बैठा हो आवाज सुनकर भाग जाए। आजकल हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम, अरे बोलो, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम। हाँ, तो मच्छर से होशियार रहिए, सोएंगे कि मच्छर कहेगा टप। अरे बोलो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो इधर देखो, नबी के माँ बाप ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद। क्या थे? मुवहिद। और ऐलाने नबूवत के बाद नबी ने अपने माँ बाप को जिंदा फरमाया। अरे बोलो, नबी ने अपने माँ बाप को अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने जिंदा फरमाया। नबी ने अपने माँ बाप को कलमा पढ़ाया। तो पहले मुवहिद थे, अब मोमिन भी बन गए। पहले भी जन्नती, अब भी जन्नती है। और ऐसे जन्नती कि जो इन दोनों को जन्नती माने वो भी जन्नती है। और उससे बड़ा पगला कोई नहीं जो इन दोनों के खिलाफ बोले। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। इजाजत दीजिए तो नबी के माँ बाप की शान में एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। टाइम भी बताइएगा। अरे बोलो, क्या? 2:45 हो गए। मुझे भी गाड़ी पकड़नी है और हजरत को भी गाड़ी पकड़नी है। आपका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। 2 हदीस सुनाऊंगा बस। इधर देखिए, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। दिलबर साहब भी बिल्कुल मूड बनाकर बैठे हैं कि जब तक हम फजर की अजान नहीं सुन लेंगे उस वक्त तक आज हम पढ़ते रहेंगे। ये दिलबर साहब, आज आपको पकड़ के इनको रखना है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? माशाअल्लाह, हमारा बहुत मस्त शायर है, पूरे मजमा को जगा के रखता है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए बाबू लोग, अब मैं आपको एक और प्यारी हदीस मेरे आका के माँ बाप की शान में, वालिदैन करीमैन की शान में, खानदान और नसब की शान में आप सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। ये दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यल्लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशरिबु शुबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतक़िलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जबरदस्ती नहीं, 3 बजे देखते रहिए, तकरीर खत्म। उसके बाद दिलबर बाबू नाथ, उसके बाद हजरत का खिताब, फिर सलातो सलाम। इजाजत है? बाबू लोग, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो, 424। इधर देखिए, 424 से होशियार हो जाए। इधर देखिए, 424 पेज नंबर है, इससे होशियार रहना है। नबी ने क्या फरमाया सुनिए। नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, कहां तक? जोर से बोलो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और आमना के पेट मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, सब के सब पाक थे, सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, सब के सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे। कोई बुत परस्त नहीं थे, कोई मुशरिक नहीं थे। आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, आमना के पेट मुबारक तक, शिकने मुबारक तक, जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी से मैं इस दुनिया में पहुंचा, जितनी रहमों से मुंतकिल होकर इस दुनिया में पहुंचा, सब
पाक व साफ थे, सब तय्यब व ताहिर थे, सब मुसफ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे। ये हदीस कह रही है, हाथ उठाकर बोलो, ये हदीस कह रही है। अब फैसला आप करो कि हदीस को मानोगे कि खबीस को मानोगे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जो हदीस मैंने पेश की इससे पता चला कि सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप, बोलो, सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप जन्नती नहीं, बल्कि उनके भी माँ बाप जन्नती, उनके भी माँ बाप जन्नती, माँ बाप के माँ बाप भी जन्नती। आदम से लेकर आप पलट जाइए अब्दुल्ला तक और आमना के शिकवे मुबारक तक, सब के सब जन्नती है, मुवहिद है, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। ये हदीस कह रही है। उनसे कहिए तुम जो बोल रहे हो ये तुम्हारी बनावटी गुफ्तगू है, तौबा करो तौबा, होश में आओ, होश में। अपने माँ बाप की भी कदर करो और नबी के भी माँ बाप की कदर करो। इसी में भलाई है, इसी में, बोलो, इसी में हमारी हिफाजत है और ईमान की बका है। अब चलिए तीसरे या चौथे नंबर पर जो मैंने वादा किया, आखिरी बात, चूंकि टाइम नहीं है, हदीस सुनाने को घंटों लग जाएगा, बस आखिरी बात मैं बयान कर दूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? वैसे कुछ बातें छूट गई, इसलिए छूट गई कि अब टाइम नहीं है। अगर मैं बयान करूंगा तो हजरत का टाइम चला जाएगा और हजरत की भी ट्रेन छूटेगी, मेरी भी ट्रेन छूटेगी, इसलिए कुछ बातें रह गई, उसको बाद में आऊंगा तो बयान करूंगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, क्या मेरे नबी कब्र में जिंदा है? क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है? कुछ लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह, अरे बोलो, जोर से बोलो माज़अल्लाह। इधर देखिए हजरत, आज के बाद से कोई कहे कि मिट्टी में मिल गए तो सीधा जवाब दीजिए, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह के नबी अपने मज़ारों में जिंदा है और अल्लाह के वली भी अपने मज़ारों में जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट में एक बात जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये बताइए, हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? मिट्टी से। जोर से बोलो, मिट्टी से। थोड़ा मैं कम सुनता हूं। मिट्टी से। आप लोग मुझे बहरा मत समझिएगा, मैं बहरा नहीं हूं, लेकिन कुर्सी पर बैठता हूं तो बहरा बनना पड़ता है ताकि लोग बोले। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? तो मेरी तरफ देखिए, ये बताइए कि हम लोग किस चीज से बने? अच्छा, मिट्टी से बने। तो ये बताओ, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? अरे बोलो, जल्दी बोलो। इस छोकरे को, इसको जगाओ, ये जगाओ। ये देखिए, ये लगता है ससुराल का मुर्गा खा के सो रहा। इसको उठाइए, इजाजत है? जल्दी बोलिए। मेरी तकरीर में ऐसे झुक के बैठा हुआ है जैसे लगता है ससुराल वालों ने इसको भगा दिया। जाग कर बैठिए, होश में बैठिए माशाअल्लाह। इधर देखिए बाबू लोग, ये बताइए हम लोग किस चीज से बने हैं? जल्दी बोलिए। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, मिट्टी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर होती तो जैसे सेब का बाग कश्मीर में है, ऐसे बोलो देवघर में भी आप लोग अपने, बोलो, खेतों में सेब का बाग लगाए होते, काजू बादाम लगा देते, बोलो अंगूर लगा देते, सोचते बड़ी अच्छी आमदनी है, चलो यहां भी सेब की पैदावार की जाए, यहां भी अंगूर लगाया जाए, यहां भी भूसावल जैसा लंबा लंबा केला और इलाहाबाद जैसा लाल लाल सेब की तरह अमरूद पैदा किया जाए। लेकिन आप इधर देखिए, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। इलाहाबाद की मिट्टी अलग है, कश्मीर की मिट्टी अलग है, नासिक की मिट्टी अलग है, भूसावल की मिट्टी अलग है और हमारे झारखंड की मिट्टी अलग है, देवघर जसीडीह की मिट्टी अलग है। तो हर मिट्टी में हर चीज, बोलो, नहीं होती, बल्कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है। जब आप समझ गए तो अब समझिए,
मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं, सब लोग मिट्टी से बने हैं, मगर मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अच्छा एक बात और सुनिए, ईंट किस चीज से बनती है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। ए बाबू, क्यों बात कर रहा है? सही से बैठो, सही से बैठो, इधर देखो, ये बताओ ईंट किस चीज से बनती है? जल्दी बोलो। 10 मिनट में तकरीर खत्म, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन 2 मिनट सुनिए, ईंट किस चीज से बनती है? जल्दी बोलिए। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, ईंट कच्ची भी होती है, पकी भी होती है। अच्छा ये बताइए, जब ईंट खूब पक जाती है और मिट्टी के अंदर उसको दफन कर दिया जाता है, तो बोलो क्या वो ईंट गल जाती है? नहीं। जोर से बोलो। आपके झारखंड की जो मिट्टी है थोड़ा दूसरी तरह मिट्टी है, वरना यूपी की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, इधर देखिए बंगाल की मिट्टी इतनी शानदार ईंट होती है कि ऐसे कीजिए तो टन टन की आवाज आए। अरे बोलो, हाँ बड़ी पकी हुई होती है, बोलो बहुत पकी हुई ईंट होती है। ऐसी पकी ईंट को आप जमीन में दफन कर दीजिए। आज तो छोड़ दीजिए, अगर किसी का 500 बरस पुराना मकान हो या मुगल के जमाने का मकान हो, आप चले जाइए उस मकान के पास, मकान के मालिक को कहिए मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, एक ईंट निकालने दो, तो कसम खुदा अगर मुगल के जमाने की ईंट होगी 1000 बरस की, 1200 बोलो 500 700 बरस की, तो आज भी खोद कर निकालेंगे तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अरे बोलो निकलेगी कि नहीं? अब आप फैसला करो और उन लोगों से बताओ कि जनाब ईंट तो मिट्टी से बनी है, 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई। इसका मतलब यह है कि जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उस मिट्टी को खाती है जो कच्ची होती है, जो कमजोर होती है, लेकिन जो मिट्टी पक जाती है उसको जमीन नहीं खाती। हम भी कहते हैं कि काफिरों को जमीन खा जाती है, मुशरिकों को जमीन खा जाती है, यहूदो नसारा को जमीन खा जाती है, बेईमान लोगों को जमीन खा जाती है, बेअमल मुसलमानों को जमीन खा जाती है, क्योंकि उनके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है, उनका ईमान कच्चा होता है, उनका अमल ठीक नहीं होता। मगर कसम खुदा अल्लाह वालों को मिट्टी नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। माशाअल्लाह बैठिए, जल्दी बैठिए बाबू, जल्दी बैठिए, कोई जाएगा नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट मेरी बोलो पूरी तकरीर सुन लो, फिर उसके बाद अगर इस्तिंजा की जरूरत हो तब जा सकते हैं, और जरूरत नहीं तो बर्दाश्त करके बैठिए। हजरत का भी खिताब होना है, दिलबर बाबू भी नाज़ शरीफ पढ़ेंगे। बस एक हदीस सुनाता हूं, तबीयत मचल जाएगी। अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है, इजाजत दीजिए तो सिर्फ एक हदीस। अरे बोलो, ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन एक हदीस सुन लो। ए बाबू लोग ध्यान से सुनो, अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर